Our top focus story on the broadcast: the Uttar Pradesh police claim to have blown the lid of the biggest forced conversion racket in the country. The anti-terror squad of the Uttar Pradesh police arrested Maulana Kaleem Siddiqui, insisting he is the kingpin of the forced conversion syndicate. Police say the arrests come after interrogation of some Maulanas and Maulvis arrested earlier this year. The Samajwadi Party has accused the Yogi Adityanath government of targeting Muslims and polarizing the environment ahead of the crucial 2022 Uttar Pradesh elections. UP police say they have busted the biggest conversion racket ever in the state. The kingpin of the conversion ring, Maulana Kaleem Siddiqui, is accused of running a conversion racket through his trust, NGOs and madrasas. Police say he received funding from the Darul Uloom Deoband. Money was also received from abroad through his trust, Shah Wali Ullah. मौलाना कलीम सिद्दीकी अवैध धर्मांतरण के कार्य में लिप्त है, जिसके लिए विदेशों से भारी फंडिंग प्राप्त की जा रही है। यह भारत के सबसे बड़े धर्मांतरण संचालित सिंडिकेट संचालित करता है। These funds were reportedly used to construct madrasas across Rajasthan, Punjab, Haryana, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Chhattisgarh and Odisha. Siddiqui, who ran a trust called Dawatul Islam, which engaged lower caste Hindus in missionary work, was arrested in Meerut. कप्तान साहब ने इस बात का शक जाहिर किया है कि ATF वगैरह के अंदर उनको रखा गया है और हमको इस बात का भी यकीन दिलाया है कि उनके साथ किसी किस्म की कोई ज्यादती नहीं होगी। Police say the trust distributed text which abused Hinduism. The text apparently incited Muslims to convert Hindus on a large scale. Siddiqui, a resident of Muzaffarnagar, is popularly known as Kahfa of Ali Mia. Police say he was allegedly converted over 5 lakh people so far. Police accuse him of sexually exploiting and trafficking women, upper caste Hindus in particular. He is also accused of radicalizing the neo-converts. The action by the UP ATS has led to a full-blown political war. वो आपको बसपा के मंच पर दिखाई देते थे, वो आपको कांग्रेस के मंच पर दिखाई देते थे। ऐसे लोगों को हम जेल में डालने का काम कर रहे हैं जो लोग देश की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे हैं या देश में धर्मांतरण जैसा काम कर रहे हैं। गलत किया जा रहा है। ये तो बीजेपी गवर्नमेंट सिवाय यानी मुसलमानों को घेरने के, मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के दूसरा कोई काम नहीं है। The opposition claims that the crackdown ahead of the Uttar Pradesh assembly polls is yet another bid to polarize the polls, a charge that's been outrightly rejected by the Yogi government. Bureau Report, India Today. The Uttar Pradesh police claim they've smashed the largest forced conversion syndicate in the country that was receiving crores from overseas to convert Hindus to Islam. The opposition says they're vitiating the atmosphere just before elections. Joining me on India First is Prashant Kumar, Additional Director General of Uttar Pradesh Police. He's overseeing these investigations. Mr. Kumar, is there evidence, sir? Is there evidence that can be produced in a court of law that these are forced conversions? अगर ये जबरदस्ती धर्मांतरण हो रहा है तो इसके साक्ष्य क्या है इस समय? देखिए, ये जो पूरे धर्मांतरण का रैकेट था, इसका पर्दाफाश उत्तर प्रदेश पुलिस ने 20 जून 2021 को किया था, जिसमें कि हमने इस्लामिक दावा सेंटर के उमर गौतम को और मुफ्ती काजी को गिरफ्तार किया। उस समय से ही इनके जितने भी लिंक्स हैं, अभी तक आज की गिरफ्तारी को लेके हम लोग 11 लोगों को गिरफ्तार कर चुके हैं, जिसमें से कुछ लोग विभिन्न प्रदेशों के हैं और ये इनके द्वारा जो फंडिंग इत्यादि की बात हो रही है जी, ये सभी चीजें प्रूव्ड हैं और हमारे पास इतने पुख्ता सबूत हैं जिसके बेसिस पर आज तक इनमें से किसी भी व्यक्ति की बेल नहीं हुई।
जी, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि दे हैव बैटरी ऑफ गुड लॉयर्स, बट द वे वी हैव पुट अप गिवन द एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ, जी, that court has appreciated our investigation and not released anybody on bail. We have already charge sheeted Okay. 6 people and 4 of them are still under investigation, and very soon we will be submitting the charge sheet. the opposition, especially parties like the Samajwadi Party or the Aam Aadmi Party, they are saying that this is a systematic effort to target Muslims and vitiate the atmosphere just before 2022 assembly elections in Uttar Pradesh. देखिए, इन मुद्दों पे हमें कुछ कहना नहीं है और उनके पास उनका एक व्यू हो सकता है, लेकिन जो डे टू डे पुलिसिंग हो रही है उससे इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं है। ठीक, आपने देखा होगा कुछ दिन पहले एक यहाँ पर आईडी भी बरामद हुआ था, उसके पहले हम लोगों ने अलकायदा का रैकेट भी बस्ट किया था। ये चीजें जून से ही चली आ रही हैं। जून के समय तो कोई इस तरह की बात नहीं थी। हम लोग जो डे टू डे हमारी इंटेलिजेंस गैदरिंग है उसके बेसिस पे जो कार्रवाइयाँ होती हैं और ये लगातार चल रही हैं, इनको इन चीजों से जोड़ के जो भी हमारे बहादुर साथी इन अच्छे कार्यों को कर रहे हैं जी, उनकी कार्यों को रिडिक्यूल करना ये अच्छी बात नहीं है। मैंने पहले भी कहा था, वो हर एक आदमी अपना विचार रखने के लिए, विचार के बारे में बोलने के लिए स्वतंत्र है, और अगर किसी को कोई भी डाउट है तो वो कोर्ट में जा सकता है, अपनी बात रख सकता है। जो विदेशों से पैसा आ रहा है उसका क्या आपके पास कोई सबूत है या साक्ष्य है कि उसका इस्तेमाल हो रहा है जबरदस्ती धर्मांतरण के लिए? क्योंकि मौलाना कलीम सिद्दीकी के कुछ समर्थक हैं, उनसे जब हम लोगों ने बात की तो उन्होंने कहा कि विदेशों से पैसा आ रहा है और इसमें दो राय नहीं कि कुछ इंस्टेंसेस में करोड़ों में भी आया होगा, लेकिन ये अंडर प्रिविलेज्ड मुस्लिम लड़के जो है उनके मदरसों के लिए है या उनकी तालीम के लिए है? नहीं, हमने ये कहा है कि फेरा के अंतर्गत ये अकाउंट उनका न तो उन्होंने कोई सूचना दी है, न तो इनका अकाउंट अप्रूव्ड है फेरा गाइडलाइन के तहत। तो इतना ह्यूज अमाउंट, वो जिसमें से 1.5 करोड़ रुपए तो बहरीन से ही आए हैं और अब तक 3 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शंस के साक्ष्य मिले हैं। तो ये चीजें और कलीम के और उमर गौतम के घनिष्ठ संबंध भी विवेचना के दौरान आए हैं। जी जी, इन सभी चीजों को हम लोग कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे और इनके हम लोगों ने आज इनके सारे जो भी लिटरेचर है, इनके वीडियोस हैं, ये खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं अपने वीडियो में कि हमने लाखों लोगों को कन्वर्शन कराया है। एक बात और जो निकलकर सामने आई है NFI में, देयर इज सम टॉक ऑफ नॉट जस्ट फोर्स्ड कन्वर्जन ऑफ हिंदू वुमेन बट ऑल्सो देयर एक्सप्लॉयटेशन। ये महिलाओं के उत्पीड़न की जो बात आ रही है, उसके बारे में आप हमें क्या बता सकते हैं और क्या उसके भी सबूत अभी निकलकर सामने आए हैं? हम जितनी भी चीजें आपको बता रहे हैं, हम माननीय कोर्ट में, न्यायालय में उस चीजों के साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे और उस हिसाब से चार्जशीट लगाएंगे। बहुत सारी चीजें और भी हम लगा सकते थे या कह सकते थे, लेकिन जिस चीज के साक्ष्य हैं हम केवल उन्हीं पे अभी कंसंट्रेट कर रहे हैं और धीरे धीरे विवेचना के दौरान बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं जिसको हम लोग विवेचना में सम्मिलित कर रहे हैं और कोर्ट को अवगत करा रहे हैं। लेकिन क्या कुछ ऐसे भी मामले हैं जब महिलाओं का जिक्र होता है, यह भी कहा गया कि उनकी अवैध तस्करी हो रही थी, ट्रैफिकिंग ऑफ वुमेन वाज आल्सो वन ऑफ द एलिगेशंस दैट्स बीन लेवल्ड। सो हैज एनी वुमन बीन रेस्क्यूड सो फार? इज देयर एनी रिकॉर्ड और एनी स्टेटमेंट मेड बाय एनी वुमन हु हैज बीन रेस्क्यूड और हु हैज बीन ट्रैफिक्ड, और आर दीज ओनली इनिशियल bits of information that you have that you're moving forward? इसके ये केवल बयान है, बातें हैं या सबूत है? इस संबंध में अभी विवेचना चल रही है, पर्टिकुलर इस रैकेट के बारे में। जब इस चीज के बारे में पूरे पुख्ता सबूत मिल जाएंगे
तो हम आपके साथ अवश्य शेयर करेंगे। Mr. Prashant Kumar, Additional Director General of Uttar Pradesh Police for the moment. Many thanks for joining me here on India First.